Hello, welcome back once again in Principle of Electronic Communication subject. So, in the last lecture, we have completed the chapter 2 of this subject, that is modulation technique. Today, we are going to start a new chapter under this subject. The third chapter is related with transmitter and receiver circuit of the techniques which we have studied in chapter number 2. Means, in this chapter, we are going to see the circuitry actual circuitry of those modulation technique at the transmitter side as well as in the receiver side. So mainly this chapter is going to be deal with the electronic circuit part of those modulation technique, how that modulation technique is developed, generated with the help of proper circuitry, and we are going to understand that working of that circuit and with the help of block diagram as well as circuit part, electronic circuit part. And in the start of this particular chapter, first we are going to see the generation of AM, amplitude modulation, the particular circuit using BJT, bipolar junction transistor. Then we are going to move towards the receiver part. We are going to see the different types of receiver block diagram and understand the receiver block diagram working. Then we are going to start the receiver circuits of AM demodulation, as well as in the end we are going to see the demodulation of FM. Means we are going to see the actual circuit of those demodulation part. Now first we are going to start in this chapter generation of AM, and this generation of AM is with the help of BJT, bipolar junction transistor. So you are able to see this particular diagram of generation of AM using BJT, bipolar junction transistor. Bipolar junction transistor you have studied in your previous semester, second semester in basic electronics, as well as you are going to the advanced version of this particular topic in applied electronics in this particular semester also. So with the help of BJT, bipolar junction transistor, how you are able to generate AM amplitude modulated wave. So this is the circuit it is used for generating the AM wave. For more clear, I will show you more new diagram of this particular topic with the help of presentation. So it will be more clear to you. All of you please see it is visible. This presentation side visible. Yes, sir. Okay, Yes, thank you. sir. Thank you. Yes, so this is the actual circuitry of AM amplitude modulation generation using with the help of BJT, bipolar junction transistor. Now in this case, the BJT which is used, it is not normal BJT, it is power amplifier BJT. Power amplifier. You are now studying in applied electronics subject power amplifiers, the different types of power amplifiers, class A, class B, class AB, and class C. As well as I have earlier told you in the block diagram of high level modulated AM transmitter, I have explained you the concept of that class C amplifier. So for this particular circuit, you are able to see in this particular circuit the transistor which is used for generating the AM wave for conduction. It is class C RF amplifier, class C. Now, what is the main purpose of using class C amplifier? Can anybody tell me what is the main beneficent point of this class C amplifier? So this class C amplifier is mainly used for the purpose of highly efficiency. Highly efficiency means it will conduct for the portion of the input signal. It will not conduct for the whole input signal. Whatever the input signal you are applied at the base, it will conduct only for the portion of that input signal. That's why it is known as highly efficient class C RF amplifier. So in this diagram you are able to see, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लास सी एम्पलीफायर का मेन पर्पस क्या होता है समझ में? आप लोगों को क्लास सी एम्पलीफायर का मेन पर्पस क्या होता है? उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है. Efficiency. वेरी गुड. एफिशिएंसी सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि वो पोर्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल पे वर्क करता है, कंडक्ट करता है.
बाकी सब क्या होते हैं, अगर नॉर्मल क्लास ए एम्पलीफायर आप लोग यूज करोगे तो नॉर्मल क्लास ए एम्पलीफायर क्या करेगा, पूरा की पूरा इनपुट सिग्नल पे क्या करेगा, वो कंडक्ट करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसा आउटपुट आपको पूरा फ्रूटफुल चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको रीजन मालूम है, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन। तो वो हिसाब से आपका आउटपुट में वो वेवफॉर्म अवेलेबल नहीं हो पाते। तो इसके लिए क्लास सी एम्पलीफायर यूज करके क्या करना पड़ता है, जो पोर्शन आउटपुट में दिखेगा वो पोर्शन को ही आप खाली क्या करो, एम्पलीफाई करो, कंडक्ट करो उस टाइम पे। तो ये इसलिए इसको बोलते हैं हाईली एफिशिएंट। तो यहाँ पे आप देखो, आप लोग ध्यान से, हम लोग को एएम सिग्नल जनरेट करने के लिए दो सिग्नल की जरूरत पड़ती है, पता है ना आप लोग को। एएम सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जनरेट करने के लिए विच आर द टू सिग्नल्स वी रिक्वायर्ड, एक कौन सा सिग्नल चाहिए रहता है, कैरियर सिग्नल, और एक दूसरा कौन सा सिग्नल चाहिए रहता है हम लोग को, क्या नाम दिया हुआ इधर पे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, वेरी गुड। अब एएम की डेफिनेशन तो आपको पता है, एएम की डेफिनेशन क्या है, कैरियर सिग्नल का, ये कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, किसके हिसाब से चेंज होगा, विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ कौन सा सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग, यस, वेरी गुड। तो ये जो कैरियर सिग्नल है, इस कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज करवाना है। अब जो भी इसका एम्पलीट्यूड होगा उस एम्पलीट्यूड को चेंज करवाना है विथ रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो दैट्स व्हाई अब ये सर्किट में आपको दो पर्टिकुलर सिग्नल दिख रहे हैं। एक कौन सा सिग्नल दिख रहा है, एक तो ये कैरियर, और एक दूसरा कौन सा दिख रहा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। आउटपुट जो दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा है, इधर पे लिखा हुआ है। आपको जो आउटपुट चाहिए वो क्या चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट ही, इसका पर्टिकुलर नेम ही यही है, एएम मॉड्यूलेटर सर्किट। यानी आपको एएम चीज जनरेट करना है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड आउटपुट जनरेट करना है। तो एट द आउटपुट यू विल गेट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये एएम का आउटपुट आप लोग को इधर पे मिलेगा, इधर पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड आउटपुट। तो यहाँ पे हम लोग को इनपुट में कैरियर सिग्नल अप्लाई करना है बेस ऑफ ट्रांजिस्टर पे, और पोर्शन ऑफ द कैरियर सिग्नल पे ये पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, और कंडक्ट करके कलेक्टर पे इसका आउटपुट मिलेगा आपको। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, कलेक्टर पे यहाँ पे टैंक सर्किट यूज हुआ है, एल सी, एल और सी का पैरेलल कंपोनेंट, इसको ट्यून सर्किट बोलते हैं। दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज नोन एज टैंक सर्किट, ट्यून सर्किट। और इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि जब भी इस पर्टिकुलर सर्किट सेक्शन पे, टैंक ट्यून सर्किट पे करंट सप्लाई मिलेगा, करंट पल्सेस मिलेगा, तो ये क्या करना चालू करता है, ऑसिलेशन करना चालू करता है। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब आपको समझ में आता है, जो रेजोनेट होता है, मतलब जो साइन वेव टाइप का सिग्नल, साइन वेव टाइप का सिग्नल आपको मिलता है, स्विंग, हाँ स्विंग टाइप का। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन जो आपको दिख रहा है एल और सी, इसको ट्यून सर्किट बोलते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी ऐसा है, ट्यून सर्किट की प्रॉपर्टी ऐसा है, व्हेनेवर इट विल रिसीव अ करंट पल्सेस, सो इट विल स्टार्ट रेजोनेटिंग, इट विल स्टार्ट रेजोनेटिंग। रेजोनेटिंग मतलब समझ में आया, जो मतलब आप लोग को साइन वेव टाइप का सिग्नल जनरेट होगा इधर पे। फिर रेजोनेशन मतलब वो स्टेडी नहीं है, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहेगा, उसको बोलते हैं रेजोनेट। तो ये इंडक्टिव प्रॉपर्टी है ये एल और सी पैरेलल कंपोनेंट की। नाउ अब इससे पहले इसको जो करंट पल्सेस जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, वो देखो आप लोग, वो अब कहां से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। तो आपको पता है कि हम लोग को ये कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज करवाना है, किसके हिसाब से चेंज करवाना है, विथ रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, विद द हेल्प ऑफ पावर एम्पलीफायर आपने उसको क्या किया, पहले एम्पलीफाई किया, और एम्पलीफाई करने के बाद में आप इधर ये ट्रांसफार्मर में दे रहे हो। जो ट्रांसफार्मर कहां पे लगा हुआ है, पर्टिकुलर कलेक्टर पे ही लगा हुआ है, जहां पे आप वीसीसी सप्लाई देते हो। तो वीसीसी सप्लाई का सेकेंडरी और प्राइमरी, प्राइमरी में क्या आ रहा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, दिस इज ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले आपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को क्या किए, विद द हेल्प ऑफ पावर एम्पलीफायर एम्पलीफाई किए। फिर प्राइमरी ऑफ जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, एम्पलीफाइड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये अब किसके साथ में ऐड हो रहा है, ये सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर में किसके साथ में ऐड हो रहा है, ये वीसीसी सप्लाई के साथ में। मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड ऐड हो रहा है, सीरीज में ऐड हो रहा है, किसके साथ में ऐड हो रहा है, ये वीसीसी सप्लाई वोल्टेज के साथ में। अब जो सप्लाई वोल्टेज और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज मिला के जो टोटल वोल्टेज होगा, तो वहां तक का ये पर्टिकुलर कलेक्टर का आउटपुट चार्ज करेगा। कलेक्टर का आउटपुट क्या होगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। आपको तो पता है ना क्या होता है, जब भी ट्रांजिस्टर कंडक्ट होता है तो ये कंडक्ट होके कहां तक, इसका आउटपुट कहां तक पहुंचता है, जो पर्टिकुलर ये सप्लाई वोल्टेज है वहां तक का ही पहुंचेगा, उसके ऊपर तो पहुंच नहीं सकता है। अब हम लोग ने क्या किए, यही सप्लाई वोल्टेज वीसीसी के साथ में अपना क्या ऐड करवा दिए, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ऐड करवा दिए।
मतलब अब क्या हो गया, अब ये सिर्फ वीसीसी सप्लाई तक नहीं पहुंचेगा, अब इसके साथ वीसीसी सप्लाई के साथ में आपका कौन सा वोल्टेज आ गया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज भी आ गया। यानी ये वीएमटी जो आपको दिख रहा है, वीएमटी दिस इज नथिंग बट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज प्लस सप्लाई वोल्टेज दोनों ऐड होके सीरीज में ऐड होके अब जो मेन वोल्टेज बनेगा वो मेन वोल्टेज के हिसाब से अब ये करंट पल्सेस किसको मिलेंगे, ये टैंक सर्किट को मिलेगा। तो हम लोग ने क्या किए, ये कैरियर सिग्नल को इनपुट ऑफ बेस में दिए थे, अब इसका आउटपुट ये पर्टिकुलर करंट पल्सेस के फॉर्म में कहां पे मौजूद होगा, कहां पे पहुंचेगा, ये ट्यून सर्किट पे पहुंचेगा। अब ये ट्यून सर्किट पे जो करंट पल्सेस जो हम लोग पहुंचा रहे हैं वो क्या करवा दिए हम लोग ने, थोड़ा सा उसके अंदर चेंज करवा दिए। क्या चेंज करवा दिए, उसके अंदर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी सीरीज में ऐड करा दिए। अब क्या होगा, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से करंट पल्सेस जनरेट होंगे, ये करंट पल्सेस कहां पे पहुंचेंगे, ये ट्यून सर्किट पे पहुंचेंगे, और ये ट्यून सर्किट फिर वो हिसाब से क्या करेगा, रेजोनेट करेगा। रेजोनेट करेगा मतलब समझ में आ रहा है, ऑसिलेट करेगा। और इस तरीके से आउटपुट में फिर हम लोग को क्या जनरेट होगा, एएम आउटपुट जनरेट होगा एट दिस आउटपुट ऑफ ट्यून सर्किट, एएम आउटपुट। तो कैसे हुआ ये समझ में आया। हम लोग की बेसिक डेफिनेशन क्या है पता है आपको ना, मालूम है ना। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो हम लोग ने तो इनपुट में कैरियर सिग्नल दिए थे, अब ये आउटपुट में इधर आएगा, लेकिन अब आउटपुट में एज इट इज कैरियर नहीं आएगा। अब इसके आउटपुट ऑफ एम्पलीट्यूड में हम लोग ने कुछ चेंज लगा दिए, वो चेंज किसके हिसाब से लगा दिए, विथ रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये जो ट्रांसफार्मर जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा है, इस ट्रांसफार्मर के सीरीज के साथ में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज आ गया, ये वीसीसी के साथ में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज आ गया। अब इसके हिसाब से करंट पल्सेस आ जाएंगे ये ट्यून सर्किट पे, और वो ट्यून सर्किट के हिसाब से अब ये पर्टिकुलर कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होगा, और चेंज होकर आउटपुट में आपको एम मिलेगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड आउटपुट मिलेगा। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर जनरेशन ऑफ एएम यूजिंग बीजीटी। यहाँ पे बीजीटी मतलब कौन सा यूज हुआ है, क्लास सी एम्पलीफायर यूज हुआ है। बेस में आपने क्या दिए, कैरियर सिग्नल दिए, और कलेक्टर पे आपने क्या दिए, इधर पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दिए विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफार्मर। यानी ये वीसीसी सप्लाई के साथ में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज ऐड हो रहा है, समझ में आया, सीरीज में आ गया। अब टोटल वोल्टेज जो बनेगा दोनों का एडिशन करके बनेगा, वीसीसी प्लस वीएमटी, ये टोटल वोल्टेज बन गया पूरे सर्किट का। ये पूरे सर्किट का जो मेन सप्लाई वोल्टेज हो गया वो क्या हो गया अभी, वीसीसी प्लस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो अब यहाँ पे ये हिसाब से अब इसको ये करंट के पल्सेस ये ट्यून सर्किट को मिलेंगे, और ये ट्यून सर्किट फिर वही हिसाब से रिएक्ट करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा, जो हिसाब से इसको करंट पल्सेस मिलेंगे वो हिसाब से वो आउटपुट जनरेट करेगा। तो जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो करंट पल्सेस ये ट्यून सर्किट को ज्यादा मिलेंगे, तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होगा तो ये पर्टिकुलर करंट पल्सेस के इधर पे कम ही होगी, इसके मैग्नीट्यूड में करंट पल्सेस में कम होगी, वो हिसाब से उसका आउटपुट का एम्पलीट्यूड कम होगा। तो जब जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो यहाँ पे आउटपुट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो यहाँ पे आउटपुट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही तो चीज हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एएम में। व्हेनेवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, आउटपुट ऑफ कैरियर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो कैरियर का एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो इन दिस वे ये चीज खाली हम लोग ने ये ट्रांसफार्मर का लगाने से तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड ऐड हो गया, सीरीज में ऐड हो गया ये वीसीसी सप्लाई के साथ में। अब जो जो अमाउंट में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चेंज होगा वो अमाउंट में यहाँ पे करंट पल्सेस उसको मिलेंगे ये ट्यून सर्किट को, और ये ट्यून सर्किट के हिसाब से आउटपुट में फिर एम आउटपुट क्या होगा, जनरेट होगा। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। इधर पे हम लोग ने मैंने क्या चीज आपको समझाया हूँ, तो ये सेम चीज इधर वर्किंग में आपको यही दिखेगा। यहाँ पे मेरी वर्किंग में देखेंगे आप लोग, मैंने वर्किंग में यही दिखाया हुआ है, द ट्रांजिस्टर विल कंडक्ट ओनली फॉर अ पोर्शन ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द कैरियर सिग्नल बिकॉज ऑफ क्लास सी एम्पलीफायर। तो क्लास सी एम्पलीफायर होने की वजह से ये ट्रांजिस्टर जो है, क्लास सी एम्पलीफायर होने की वजह से ये पोर्शन ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ही कंडक्ट करेगा, है ना, समझ में आया। हम लोग यही तो देखते हैं, कैरियर सिग्नल का पूरा एम्पलीट्यूड थोड़ी चेंज होता है, ऊपर का टॉप मोस्ट एम्पलीट्यूड चेंज होता है। तो क्लास सी एम्पलीफायर यूज होने की वजह से पोर्शन ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द कैरियर सिग्नल क्या होगा, ये कंडक्ट होगा, ट्रांजिस्टर उसी पे कंडक्ट होगा। और फिर ये जो कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर है इज इन द फॉर्म ऑफ किस में आएगा, ये पल्सेस के फॉर्म में आएगा, क्योंकि ट्यून सर्किट वहां पे लगी हुई है एंड सप्लाइड टू द ट्यून सर्किट। तो ये जो पोर्शन ऑफ ये कैरियर सिग्नल पे कंडक्ट कर रहा है तो वो कैसा बन जाएगा, वो पल्सेस के फॉर्म में बन जाएगा। और वो पल्सेस किसको मिलेंगे, जो ट्यून सर्किट हम लोग ने उधर पे बनाए हुए वहां पे मिलेगा।
अब क्या हो रहा है फिर, द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज एम्पलीफाइड। पहले तो हम लोग ने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को एम्पलीफाइड किया पावर एम्पलीफायर से, और फिर किसको दिया हम लोग ने, वो ट्रांसफार्मर को दिया। वो ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड्यूलेशन ट्रांसफार्मर। और जो सेकेंडरी ऑफ वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, वो क्या है, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज इन सीरीज। वो सीरीज में किसके साथ में, सीरीज में विद द सप्लाई वोल्टेज। जो वीसीसी सप्लाई वोल्टेज है उसके साथ में वो सीरीज में, जो सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर का जो है। Therefore, it will add or subtract from VCC। तो जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आप दे रहे हो वो VCC के साथ में ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो ऐड होगा, जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कम होगा। और फिर लास्ट का पॉइंट यही है, एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ ट्यून सर्किट द AM वेव इज प्रोड्यूस एट द आउटपुट ऑफ ट्यून सर्किट। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्यून सर्किट क्या है, whenever it will receive current pulses it will oscillate। ये प्रॉपर्टी है ट्यून सर्किट की। जब भी ट्यून सर्किट को करंट पल्सेस मिलता है तो वो क्या करना चालू करता है, वो रेजोनेट करना चालू करता है, ऑसिलेट करना चालू करता है, और यही ऑसिलेशंस आपको साइन वेव के फॉर्म में आउटपुट में मिलता है। तो ये प्रॉपर्टी है। सो इन दिस वे हम लोग ने क्या किए, हम लोग ने आउटपुट में AM वेव जनरेट किए। कैसे, ये कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज करवाया विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से कैरियर का एम्पलीट्यूड क्या हुआ, चेंज हुआ, और आउटपुट में चेंज हो गया, हमको AM आउटपुट मिला। तो ये सर्किट है आपकी AM वेव को जनरेट करने की। अगर आप खुद से AM वेव जनरेट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंपोनेंट, तो ब्रेडबोर्ड पे अगर आप लोग ये कंपोनेंट्स माउंट करेंगे, इनपुट में यहाँ पे कैरियर सिग्नल देंगे, मॉड्यूलिंग सिग्नल देंगे, तो तब जाके आपको आउटपुट में यहाँ पे क्या मिलेगा, AM आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो पाई होगी। आज का मेरा टॉपिक यही था, जनरेशन ऑफ AM यूजिंग BGT, AM मॉड्यूलेटर सर्किट यूजिंग BGT, जिसकी हम लोग ने सर्किट डायग्राम देखे, और ये मेरा वर्किंग इधर पे मैंने एक्सप्लेनेशन कराया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग को जरूर भेज दूंगा, पहुंचा दूंगा। और डायग्राम जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन वाला बताया, प्रेजेंटेशन वाला डायग्राम आपको बनाना है, और वर्किंग जो है आपके सामने सिंपल शॉर्ट में जो ये 4-5 पॉइंट्स है, वो 4-5 पॉइंट्स को ही आपको इधर पे एक्सप्लेनेशन में देना है। तो इसी के साथ में मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिसीवर्स। रिसीवर का फंक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ रिसीवर क्या है, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। टिल द टाइम प्लीज स्टडी वेल, स्टे सेफ एट होम, एंड घर पे अच्छे से रहो, टाइम दो, थोड़ा पढ़ाई के ऊपर टाइम दो, जो चीज़ आप लोग तक पहुंचाई जा रही है उस पर थोड़ा ध्यान दो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। Thank you very much.